Now, we were discussing about the validation and the verification techniques in the last class. Okay, so we have discussed up till about the check digits. Okay, I have already given you some homework in the previous 2-3 classes as well, and I have posted another new homework as well, which you have to complete uh, by the 5th of August. Okay, so it's the 4th or 5th day of Eid, so you have to submit it online as well. So we have discussed these the check digit as well. I have given you some activities, activity 9.1, 9.10, and 9.13. So you have to do it. Now, today we discuss about the verification method. Now, what is verification and what is validation? Validation का मतलब क्या होता है? And what is the verification? I have told you about the difference between the verification and the validation. Yes, who will tell me? Atma, Haya, Mariam, Ibad. Tell me about the verification methods. या verification होती क्या है? स्टूडेंट्स जाग रहे हैं आप लोग, ये सो रहे हैं? स्टूडेंट्स क्लास क्या हो गया है? इबाद, just tell me what is verification. Aya, please tell me what is verification method and what is the difference between verification and the validation. Sir, verification is to verify the thing or some documents or data. Now, what is the actual basic difference between the validation? I have told you. Can you see the screen? Yes. Okay, now can you see this 9.4? You can see that the two different methods which are very similar sounding names, but the validation is performed automatically by the computer system, and verification is used to check the data that does not change, it has been entered. Now, this is the difference between validation means that either the valid entry has been made or not. मैंने अपना नाम एंटर करना था तो मैंने अपना नाम ही एंटर किया है या नहीं एंटर किया, तो उसमें रिक्वायर्ड जो वैलिडेशन है इट इज बीइंग डन बाय द कंप्यूटर. बट ऑन द अदर हैंड जो वेरिफिकेशन है इट इज यूज्ड टू चेक दैट द डेटा डज नॉट चेंज. ओके, ना वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप डेटा एंटर कर दें, वैलिड डेटा एंटर कर दें, तो यू जस्ट वेरीफाई इट. That verify means that you verify that whether the data that you have entered is not changed. So that is called a validation or verification. This is the major difference between. You must remember this thing that what is the difference between the validation and verification. Okay, ये क्योंकि ये एक ही तरह से साउंड करते हैं, एक ही तरह से अंडरस्टैंड इसको किया जा सकता है, मगर इनकी जो डिफरेंसेस हैं वो क्वाइट डिफरेंट है ये दोनों. वैलिडेशन इज दैट कि आपने करेक्ट डेटा डालना है, यू हैव टू एंटर द करेक्ट इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ द वेरिफिकेशन इज टू चेक वेदर यू हैव एंटर्ड द करेक्ट और नॉट. ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस. नाउ व्हाट आर द वेरिफिकेशन मेथड्स? द वेरिफिकेशन मेथड इज दैट द फर्स्ट इज डबल एंट्री. The second is the visual or screen check. So either you can check it through your eyes or through screens as well. Then we have got the parity check. And the fourth one is the checksum. Okay, so we'll discuss it, the all four methods of verification that
देन फिर उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें, देयर आर सर्टन वेज. नाउ इन डबल चेक द डेटा इज एंटर्ड ट्वाइस. Okay, for example, if you have entered your name in a form twice, or you entered your address twice, so it means that basically the computer system compares both the entries and outputs the error message that the data has been entered, the same data has been entered twice, so it gives you an error. ठीक है, तो डेटा जो है वो दो दफा आ गया है, तो वो कहेगा कि इट बिकॉज यू हैव टू एंटर द डेटा अगेन इफ द डेटा इज नॉट डिफरेंट. For example, now the second one is the screen and the visual check. Now it is basically not computerized check, it is basically a manual check. Now manual check means that it is being done by the user only. Okay, now if I have entered anything into the computer and if I want to check it visually, तो मैं उसको एक एक करके खुद भी check कर लूँगा. That's basically a visual check or a screen check. Okay, who is not entering the data. Now for example, if I have entered the data and someone else is checking that whether I have entered the data correctly or not, though, or a verification has been done by another user, so that is called a visual check. Okay, that is not a computerized check, it is a manual check. The user either checks the data on the screen against the paper document that is being used as an input form of the confirm that their knowledge and if the data is about them or not. Now for example, if the data is ask you to enter your name, तो अगर आप नेम की जगह पे होम एड्रेस डाल देंगे तो जो चेक करने वाला है वो ये खुद समझ जाएगा, क्योंकि इट्स अ मैनुअल चेक दैट द इट इज नॉट अ नेम, इट इज अ होम एड्रेस. सो अगर इट्स एन एरर, so it will let me know कि जनरल के प्लीज एंटर योर नेम इंस्टेड ऑफ योर होम एड्रेस. तो होम एड्रेस की जगह पे अगर मैं अगर नाम लिख दूंगा तो विजुअल चेक में क्या होगा, द पर्सन विल टेल मी दैट टू एंटर द एड्रेस इंस्टेड ऑफ अ नेम. नाउ व्हाट इज अ पैरिटी चेक. नाउ दैट पैरिटी चेक जो है वो थोड़ा सा एक काफी थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है. ठीक है, मतलब उसको थोड़ा सा इसको देखते हैं, तो लेटर ऑन उसकी जो एग्जाम्पल्स हम आएंगी. क्लास 9 में भी आपको पढ़ाया होगा 2.3.1. ओके, right, this is the parity check. Okay, now this is parity check. Now parity check क्या है? It is a method that is used to check whether the data has been changed or corrupted or following the transmission of the one device to another device. Now होता क्या है कि जब आप कोई when you transfer the data from one device to another device, so you check that when the data has been transferred from this point and data received from this point, is it are both the same or not? So you check it through the parities. Now this is called a parity check. अगर मैंने अपने कंप्यूटर से एक ईमेल सेंड की है किसी को, तो that email has to be received as it is in the same form which I have sent it to the other side as well. That is basically called a parity check. Now a byte of data, how are you going to check that thing? वो कैसे आप check करेंगे? A byte of data, for example, allocated parity bits. This is allocated before the transmission takes place. जब ट्रांसमिशन होती है उससे पहले ही आप जो है वो एक, क्योंकि जो कंप्यूटर है उसका बाइट्स फॉर्मेट में डेटा जाता है. दैट फॉर्मेट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 1 बाइट एट अ टाइम. तो एक बाइट में कितने बिट्स होती है? टोटल 8 बिट्स होती है. तो 8 बिट्स जो है वो एट अ टाइम जाती है, उसी में ही पैरिटी बिट भी होती है. ओके, द सिस्टम यूज even parity has an even number of ones. System use the odd parity and odd number of ones. जिस आपको नंबर ऑफ वंस चेक करने हैं, तो क्योंकि जो डेटा है वो 1 और 0 के फॉर्मेट में जा रहा है, अगर उसकी इवन पैरिटी है,
ट्रांसमिशन के टाइम पे अगर लेट्स सपोज मैंने आपको 5 वंस भेजे, 5 वंस, तो अगर 5 वंस भेजें तो वो उसकी क्या पैरिटी होगी, उसकी ऑड पैरिटी है। अगर वही 5 वंस वहां पर भी चेक होंगे जाकर कि भाई ये 5 वंस हैं या नहीं है, तो अगर वो 5 वंस होंगे तो वो डेटा जो है वो सेम होगा। मगर इसमें बहुत डेफिशिएंसीज हैं भाई। देखिए अगर आपने डेफिशिएंसी क्या है कि अगर मैं नंबर ऑफ वंस चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल 1 तो 5 यानी कि क्वांटिटी जो 1 की है वो 5 ही हो, मगर मैं उसकी पोजीशनिंग चेंज कर दूं। फॉर एग्जांपल 1 जो पहले पोजीशन 2 पे था अब वो पोजीशन 4 पर है, फिर पोजीशन 6 वाला पोजीशन 1 पर आ गया, तो आई जस्ट शफल देम टुगेदर। तो उससे नंबर ऑफ वंस तो चेंज नहीं हो रहे मगर उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो बेसिकली इट गिव्स यू अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन एज वेल। तो ये एक डेफिशिएंसी बेस्ड पैरिटी चेक यानी कि चेकिंग सिस्टम है। इट हैज मोस्ट डेफिशिएंसी। तो इसको अगर हम इक्वली अगर हम चेक करना चाहते हैं तो देयर इज अनदर मेथड। दैट मेथड बेसिकली इज कॉल्ड अ checksum. ओके, now checksum क्या है? It's another way to check if the data has been changed or corrupted. ये एक और तरीका है कि वेदर यू, देखिए डेटा करप्शन के 2 मेथड है। पहला है पैरिटी चेक, दूसरा है चेकसम। पैरिटी चेक जो है देयर पॉसिबिलिटी, देयर अ हाई पॉसिबिलिटी टू जनरेट और टू हैव द एरर्स, ठीक है। बट देयर इज चेकसम। चेकसम में क्या है कि इसके अंदर क्या है, एक प्रिसाइज एल्गोरिथम फॉलो किया जाता है एंड दैट एल्गोरिथम विच यू फॉलो give you the value and that value has to be matched on the destination side as well. वो दूसरी तरफ भी मैच होनी चाहिए। इज इट क्लियर? यहाँ तक अभी तक बात क्लियर हुई, फिर मैं उसके एल्गोरिथम की तरफ आऊंगा। फातिमा, मरियम, हया, इबाद, अभी तक क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? Students, I need your response. Yes, sir, it's clear. Is it clear? हया, जी सर। क्लियर हो रहा है आपको ये? जी हया को क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या सर, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, चेकसम आपको समझ में आया? 2 मेथड कौन से हैं? समझ में आ गया। नहीं, कौन से 2 मेथड है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेथड जो मैंने अभी 2 मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, पहला कौन सा था और अभी मैंने कौन सा डिस्कस किया वो बताइए। सर पहले आपने पैरिटी चेक डिस्कस किया था और फिर आपने चेकसम डिस्कस किया था। ओके, पैरिटी चेक में क्या डिफरेंस, पैरिटी चेक में क्या डेफिशिएंसी जिसकी वजह से जो है हमें चेकसम यूज करना पड़ रहा है? सर पैरिटी चेक में जो पैरिटी बिट थी वो कभी कभार जो थी वो मैच नहीं हो रही थी डेटा से। ठीक है, और वो चेकसम में क्या एडवांटेज हो गया हमें? क्या सर? चेकसम में क्या एडवांटेज है हमें? चेकसम में हमें ये एडवांटेज है कि उसके कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन साइड पे। ठीक है, गुड गुड है। नाउ लेट्स सी इन एग्जांपल नंबर 3। ये आपके सामने एग्जांपल नंबर 3, यू कैन सी इट ऑन इन योर बुक एज वेल, दैट if the sum of all bytes in the transmitted block of data is less than equals to 255, then the checksum is this value. However, the sum of all bytes is greater than 255, then the checksum is found using the simple algorithm. ये फिर अगर हमारे पास तमाम वैल्यूज चेकसम की, अगर डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है उन बिट्स की वैल्यूज ग्रेटर देन 255 है, ठीक है, तो वही जो है उसकी जो है वो वैल्यू क्या बनेगी, जो वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वही उसकी चेकसम वैल्यू होगी। अगर उसकी लेस देन 255 है
क्योंकि देखिए नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, बाइट्स कितनी होती है 8। अगर 8 बाइट्स को अगर आप कैलकुलेट करें, अगर सारे वंस हों तो वो 255 होंगे। तो वो 255 जो है, अब 255 कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। ओके नाउ देखिए, अगर ये हमारे पास बिट्स है 0, तो 1 0 ये 1 2 3 4 5 6 7 ओके राइट। ये हमारे पास टोटल 8 बिट्स है। 8 बिट्स का मतलब क्या हुआ, टोटल कितने हो गए हमारे पास 1 बाइट। टोटल 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट, ठीक है। तो अब इसको अगर हम डेनरी में अगर कन्वर्ट करें इस नंबर को, तो क्या आंसर आएगा? यस, हु विल टेल मी? इसका सिंपलेस्ट तरीका क्या है? आप सिंपली इसके ऊपर, हर नंबर के ऊपर ना एक वैल्यू लिख रहा हूं, 1 2 4 8 16 32 64 1 to 8। ओके, अब ये जो 0 है इसकी वैल्यू क्या है? 1। ओके, ये इसकी पावर है। इसी तरह से इस 1 की पावर 2, इस 1 की पावर 4, फिर इस तरह से डबल होती जा रही है। 1 का डबल क्या हुआ? 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, then 64, then 128. So now you have to convert this whole binary number into the denary number. How you can convert that the whole binary number into denary number is that you have to eliminate the zeros and their powers. Okay, so we have to eliminate 64 and 1, and we have to add remaining all the powers. For example, we have to add 120, 128, we have to add 32, we have to add 16, then 8, then 4 and 2. Okay, so this is how you can enter it, this is how you can convert it. So 128 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2, so which makes it 148 128 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2, so that's basically is 190. Okay, it is equal to 190 of denary. Okay, and which is less than equals to 255. so ये हमारे पास ये अली अकबर कौन है? ये अली अकबर हमारी क्लास के स्टूडेंट्स? सर अली अकबर हमारी क्लास के? एजन नहीं है ना, अली असगर है।
क्या कह रहे हैं ये बात? अली हस्बैंड नहीं है हमारी क्लास के। मुझे आपकी आवाज़ समझ में नहीं आई। ये बात आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा मैं। ये अली अकबर हमारी क्लास के हैं स्टूडेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, सर शायद हमारी क्लास के हैं, ये उन्होंने चेंज करा दिया होगा। यस सर। okay, now as you can see that this 190 is less than equals to 255। तो अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पे हमारी क्या आ गई, क्योंकि ये 190 इससे कम है। तो अब हमारे पास क्या है, वी गेट फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्गोरिथम है, if it is less than 255 से अगर लेस देन है, then the checksum is this value। तो ये अभी हमारे पास लेस देन जो 190 वैल्यू, यही हमारी चेकसम वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, यही हमारी चेकसम वैल्यू बनेगी। वन 190 will be the checksum वैल्यू। ना अगर हमारे पास कंडीशन आ जाए कि जो x की वैल्यू है वो 1185 है, जैसे लेट सपोज हमारे पास 1185 आ गई, जो कि 255 which is more than 255 and greater, so how you can calculate the checksum value? So you have to divide the whole value by 256। for example, if I get the value of 1156 या 1185, that 1185 is divided by 256। why we are making dividing by 256? because from 0 till 255 there are 256 characters or numbers। okay, so this is how why we are using 256। तो ये 256 नाउ डिवाइड करने के बाद आंसर आया 4.629। नाउ राउंडिंग ऑफ, क्योंकि वी हैव टू राउंडिंग डाउन करना है, हमने राउंड डाउन करना है, पूरा अप नहीं करना। ठीक है, तो हमारे पास 4.6 आ रहा है, तो राउंड डाउन करने से क्या होगा कि वी हैव टू एलिमिनेट ऑल द डेसिमल नंबर्स, डेसिमल वैल्यूज के बाद, उसके बाद इसमें से एक नंबर। कैसे बात कोई मशहूर है क्या? and then y equals to 4 multiply by 256 gives z equals to y multiplied by 256 equals to 1024। now y की वैल्यू 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 256 क्या हुआ 1024। so this is the step and that's how you can get the value of z। Again, the difference between x and z gives you a checksum number। Now the x की वैल्यू क्या है 1185 and you got the value of z equals to 1024। Now you have to minus that value, subtract that value, and you will get the checksum। The checksum is 161। This will give you the checksum value। So this is and that checksum value has to be calculated on the destination side as well and on the sending side as well। यानी कि अगर यूजर A है उसकी तरफ भी 161 आना चाहिए, और जो यूजर B है जिसको डेटा भेजा जा रहा है उसके पास भी 161 ही कैलकुलेट होना चाहिए। तो दैट्स हाउ द होल डेटा कैन बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। इससे फायदा क्या होगा कि अगर मैं नंबर ऑफ वंस को इधर उधर भी कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो द एक्यूरेट नंबर ऑफ वंस अगर अपनी प्लेस पर होंगे तो इट विल गेट द एक्यूरेट वैल्यू। क्लियर यू ऑल? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स? Now we have finished that
the validation and the verification method. Okay, we have discussed double entry, we discussed visual check, parity check, and the checksum, and we have already finished the trace table as well. Okay, कुछ trace table की exercise भी हमने कर चुके हैं, और फिर इन द नेक्स्ट क्लास जो है वो ईद के बाद जो है वो हम ये एक्टिविटीज जो है वो हम लोग करेंगे, और ये कुछ इंशाल्लाह जो है वो आपको ये होमवर्क में मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। आज एक्टिविटी 9.14, तो ये आपका कुछ होमवर्क है 9.15. Okay, these are the two activities which you have to complete it by 5th of August, by the next class. Okay, let me take your attendance. Right, class, this lecture is basically is recorded, और जो स्टूडेंट्स हैं किसी को कोई इशू है तो वो डिस्कस कर सकता है, और अगर कोई भी चीज़ जो है क्या कहते हैं समझ में ना आए तो दे कैन आस्क मी टू द नेक्स्ट क्लास एज वेल, and I will post this lecture on my YouTube channel as well, and I will share the link of that video on the Google Classroom. So if any one of you did not understand or miss this class, so they can review this lecture and through this video. Okay, I will share the link on the Google Classroom. I hope that you will all complete your work by the due date, and inshallah I will see you in the next class after Eid. Take care and Eid Mubarak.